Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to see the important point of trigonometric function, solution of triangle. Most interesting and most important point, second point of the trigonometric function. So for MSTCET, trigonometric function is divided into three parts. First part is solution of trigonometric equation, वो हमने पहले ही कंप्लीट किया है. We have seen principal and general solution. Now we will see the solution of triangle. In this lecture we will discuss the important formulas for MSTCET of solution of triangle, and the next part is inverse, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे. But now this is the lecture to revise the important formulas for MSTCET of solution of triangle. So students, before starting the lecture, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So solution of triangle की शुरुआत करते हैं हम 11th के फॉर्मूले के रिवीजन से. First we will revise those formulas and then we will start the 12th solution of triangle for MSTCET. So first see the revision of 11th trigonometry formulae, and these formulas are also useful for this solution of triangle. So here first is the revision. In triangle ABC, we know that A plus B plus C is equal to pi. In triangle ABC, A plus B plus C is equal to pi. And we have these important results. Sine of A plus B is equal to sine of A plus B, sine of B plus C, sine of C plus A, cos of A plus B, cos of B plus C, cos of C plus A. ऐसे फॉर्मूले हमें देखने के. So here if this A plus B is equal to pi minus C, as A plus B plus C equal to pi, so taking sine ratio on both sides, so sine of A plus B will be equal to sine of pi minus C, and therefore the formula is sine of A plus B is equal to sine C. So this is the first formula, sine of A plus B equal to sine C. Similarly we can prove that sine of B plus C equal to sine A and sine of C plus A equal to sine B. Next group is, as A plus B is equal to pi minus C, तो इसका हम cos लेते हैं, taking cos ratio on both side. So I have this cos of A plus B is equal to cos of pi minus C. So therefore cos of A plus B is equal to cos of pi minus theta is minus cos theta, so it is minus cos C. So this is the second result, cos of A plus B equal to minus cos C. तो इसके दो रिजल्ट होंगे, cos of B plus C will be equal to minus cos A and cos of C plus A equal to minus cos B. यहाँ पे sin of A plus B equal to sin C, sin of B plus C equal to sin A and sin of C plus A equal to sin B. So these are the two groups. Next, in the next we have to find the A plus B by 2 का sin और cos क्या होता है. These formulas are very useful for solving the problems on solution of triangle for board as well as MSTCET as well as JEE. So here is A plus B plus C equal to pi. So this A plus B is equal to pi minus C. A plus B by 2 is equal to pi by 2 minus C by 2, dividing by 2 on both sides. So taking sine ratio, this is sine of A plus B by 2 is equal to sine of pi by 2 minus C by 2. So what is sine of pi by 2 minus theta? Sine of pi by 2 minus theta is cos theta. So therefore sine of A plus B by 2 will be equal to cos C by 2. So this is third group का first result. Sine of A plus B by 2 is equal to cos C by 2. So similarly, what will be the sine of B plus C by 2? So sine of B plus C by 2 will be equal to cos A by 2. And what will be the sine of A plus C by 2? So sine of A plus C by 2 will be equal to cos of B by 2. So this is one result. Similarly, here अब A plus B by 2 is equal to pi by 2 minus C by 2 है. अगर हम इसका cos रेशो लेते हैं तो cos of
a plus b by 2 will be equal to cos of pi by 2 minus c by 2, taking cos on both side. So we will get cos of a plus b by 2 will be cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. तो a बनेगा sin of c by 2. So as cos of a plus b by 2 is equal to sin c by 2, what will be cos of b plus c by 2? So cos of b plus c by 2 will be equal to sin of a by 2. And what is the result? Cos of a plus c by 2 or c plus a by 2. So cos of c plus a by 2 will be equal to sin of b by 2. So these four groups are very important for solving the problems on MST-CET of solution of triangle. Now let us start the topic solution of triangle for MST-CET. So students, start करते हैं important formulas of the topic solution of triangle, trigonometric function का second part, very interesting and important point. इस पे CET एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन होता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल और इसे अच्छी तरह से आप स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए सभी फॉर्मूलेज. सो हियर इज सेकंड, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट वी विल सी द नोटेशन. हमें देखने का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सो इन द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वी विल सी द नोटेशन अबाउट द ट्रायंगल. सो हियर इज द नोटेशन एंड इन द ट्रायंगल ABC क्या नोटेशन यूज़ करते हैं. So angles of the triangles are denoted by capital letters, capital A, capital B and capital C are the angles, and their sides are denoted by small letters ABC. So here length of BC is equal to A, BC length A से denote होती है, length of AC is equal to B and length of AB is equal to C. So these are the notations for the solution of triangle. Again semi perimeter, yes, सेमी पेरीमीटर जो होता है यस दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2. सो यस इज द सेमी पेरीमीटर. तो पूरा पेरीमीटर 2s क्या होगा, व्हाट विल बी द 2s. सो 2s विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड दिस 2s इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, and s is a plus b plus c by 2. And the last notation which will be used in this topic, that is the area of triangle ABC. So area of triangle ABC is denoted by delta. So these notations are going to be used in the topic solution of triangle for MST-CET. So now see the next point. Next point में हम discuss करेंगे sine rule. So what is the sine rule in triangle ABC? तो ऐसे rules है sine rule, cosine rule, projection rule. All these rules are very helpful in solving the problems for MST-CET. So here this is the sine rule. So what the sine rule statement क्या है sine rule का. So in any triangle ABC, in any triangle ABC sine rule क्या कहता है, a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin b equal to 2r. 2r कैपिटल R है. R क्या है, R is the circumradius of the triangle ABC. सो सर्कम सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, और उसकी रेडियस जो होती है वो होती है सर्कम रेडियस एंड दैट रेडियस इज डेनोटेड बाय कैपिटल R. सो द साइन रूल इज a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू 2r, वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC. सो स्टूडेंट्स, इस साइन रूल को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. As all these three ratios are equal to 2r, all these three ratios are equal to 2r, तो 2r एक कांस्टेंट है. तो उस कांस्टेंट को हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय k कंसिडर करेंगे और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू k. तो मेरा a बनेगा k साइन a, b बनेगा k साइन b और c बनेगा k साइन c. So we can write the values of ABC as k sin A, k sin B and k sin C. Now again the sine rule is a by sin A, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, sin A by A इक्वल टू sin B by B इक्वल टू sin C by C इक्वल टू अगेन कॉन्स्टेंट के. ये कॉन्स्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है. वाई दिस कॉन्स्टेंट इज पॉजिटिव. अब A देखिए, A by sin A, so A is the length of the side,
A is the angle of the triangle. So angle of the triangle is less than 180, greater than or equal to 0. So A lies either in first quadrant or second quadrant, और दोनों quadrant में साइन पॉजिटिव होता है. So this is positive, therefore this constant K is पॉजिटिव. तो साइन रूल को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के. देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ साइन ए, साइन बी एंड साइन सी आर ए के, बी के एंड सी के. तो इस तरह से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय साइन रूल यूज़ करना पड़ता है. एंड द साइन रूल शॉर्टली हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. It means sides of the triangle A is to B is to C are proportional to, sides of the triangle are in proportional with the sines of their opposite angles. So sin A is to B is to C is equal to sin A is to sin B is to sin C. This is also a sine rule, or sin A is to sin B is to sin C equal to A is to B is to C. तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय साइन रूल को अलग अलग मेथड से यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज द कंप्लीट साइन रूल. तो साइन रूल आपके समझ में आया होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज़ द कोसाइन रूल. सो सी द व्हाट इज़ द कोसाइन रूल. तो कोसाइन रूल के भी 3 फार्मूले हैं. देयर आर 3 फार्मूलेज फॉर कोसाइन रूल. तो उसमें का फर्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए. ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए. तो यहाँ से मुझे कॉस ए की वैल्यू क्या मिलेगी. सो कॉस ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सेकंड फार्मूला ऑफ कोसाइन रूल. कोसाइन रूल क्यों कहाँ गया है, यहाँ पे हमें 3 रेशोज मिलते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी. इन 3 कॉस ए कॉस बी कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. देयरफॉर दिस रूल इज कॉल्ड एज कोसाइन रूल. पहले जो था उसमें सब साइन था तो वो साइन रूल था, अब एक कोसाइन रूल है. सो व्हाट इज़ द सेकंड फार्मूला इन कोसाइन रूल. सो बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले था ए स्क्वायर इक्वल टू, अब है बी स्क्वायर इक्वल टू. सो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कॉस ऑफ बी. सो कॉस ऑफ बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca. एट द थर्ड फार्मूला इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी, और कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ कोसाइन रूल. सभी फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है. नाउ सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कोसाइन रूल. इसे हमने रिमार्क में मेंशन किया है. सो एंगल ए एक्यूट कब होता है, ऑब्ट्यूज कब होता है, राइट एंगल कब होता है, उसकी हमें कंडीशन देखने की है. सो इफ़ एंगल ए इज एक्यूट, एंगल ए अगर एक्यूट है तो कॉस ए कैसा होगा, मेरा कॉस ए में ही लिखता हूँ, कोसाइन रूल लिखता हूँ. कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. अगर एंगल ए एक्यूट है, सी द फर्स्ट केस, अगर एंगल ए एक्यूट है तो कॉस ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कॉस ए विल बी ग्रेटर देन 0. अगर ये कॉस ए पॉजिटिव है तो ये रेशो भी पॉजिटिव आना चाहिए. बी और सी लेंथ ऑफ द साइड से ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए. सो देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर. सो देयरफॉर इट इज सेड दैट इफ एंगल ए इज एक्यूट देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर. अब अगर एंगल ए ऑब्ट्यूज है, सी द सेकंड पॉइंट, एंगल ए ऑब्ट्यूज है तो कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कॉस ए विल बी लेस देन 0. कॉस ए विल बी लेस देन 0 देन इट मीन्स दिस विल बी लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 है तो ये पहले से पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए. अब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कब होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर. This b square plus c square minus a square will be negative if b square plus c square is less than a square. ये नेगेटिव कब होगा, a छोटा होगा, a बड़ा होगा. So this is the condition if the angle a is obtuse. अब अगर एंगल a राइट एंगल है, if the triangle is right angled at a equal to pi by 2 राइट एंगल्ड है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, 0, और cos a की वैल्यू 0 होगी तो दिस numerator is also 0. So b square plus c square minus a square will be equal to 0. तो मुझे कंडीशन मिलेगी b square plus c square equal to a square. So these are the 3 conditions if angle A is acute, obtuse or
राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए कंडीशन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ऑब्ट्यूज के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, राइट एंगल के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट एंगल ए। अब राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी नेक्स्ट कंडीशन और एक कंडीशन हमें मिलती है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया है। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, दिस इज सी, side opposite to angle C is C, side opposite to angle B is B, and side opposite to angle A is A. So if I find cos of B here, तो यहाँ से मेरा cos B क्या मिलता है C by A, और cos of C क्या मिलेगा, what will be cos C, so cos C will be equal to B by A, okay. तो मेरा C क्या मिलेगा, so triangle is right angled at A if C इक्वल टू ए कॉस बी, सी इक्वल टू ए कॉस बी, और बी इक्वल टू क्या होगा ए कॉस सी। सो दिस टू रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सी इक्वल टू ए कॉस बी और बी इक्वल टू ए कॉस सी। सो दिस वाज द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट कोसाइन रूल। तो ये था मेरा कोसाइन रूल, फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, एंड कॉस ऑफ सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सो दिस वाज कोसाइन रूल। नेक्स्ट चलते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने के हैं। दिस इज द रिवीजन लेक्चर फॉर MHTCET। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल। अब नंबर आता है प्रोजेक्शन रूल का। तो प्रोजेक्शन रूल के भी 3 फार्मूले हैं, आप देख रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला इज ए इक्वल टू, सेकंड फार्मूला इज बी इक्वल टू, थर्ड फार्मूला इज सी इक्वल टू। सो प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल का पहला फार्मूला आपके पास है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ओके, किस तरह से मैं याद रखता हूँ, आप भी उसी तरह से प्रोजेक्शन रूल को याद रखिए। ए इक्वल टू है तो राइट हैंड साइड में कौन सा भी कैपिटल ए भी नहीं दिखेगा, स्मॉल ए भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बी और सी के रिलेशन होंगे। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, साइक्लिकली हमें फॉर्मूला याद रखने का है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। उस तरह से सेकंड फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। सो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे बी है, ए बी और सी, तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू होगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस सी, ए कॉस सी प्लस सी कॉस सी। सो दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन रूल। एंड थर्ड फार्मूला सी इक्वल टू क्या होगा, सो सी इक्वल टू होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी, सी इक्वल टू क्या होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ प्रोजेक्शन रूल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हाफ एंगल फार्मूले। दीज फार्मूलेज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ एंगल फार्मूले। सी द हाफ एंगल फार्मूले, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। तो इसके भी 3 ग्रुप में फार्मूले लिखे हैं, साइन का एक ग्रुप, कॉस का एक ग्रुप और टेन का एक ग्रुप। सो दिस फार्मूलेज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन MHTCET। सो स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ए बाई टू का फार्मूला आपके सामने है। व्हाट इज साइन ऑफ ए बाई टू, 2s इज ए प्लस बी प्लस सी इन ट्रायंगल ABC, यस इज द सेमी पेरीमीटर, 2s इज द पेरीमीटर। तो इस फार्मूले में यस यूज होगा। सो व्हाट इज द साइन ऑफ ए बाई टू, सो साइन ऑफ ए बाई टू इज रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC। ए बाई टू है, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए है, राइट हैंड साइड में आपको कहीं भी स्मॉल ए नज़र नहीं आ रहा है। ये टेक्निक से आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने के। तो साइन ऑफ ए बाई टू इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC। तो साइन ऑफ बी बाई टू क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन CA। और साइन बी बाई टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन सी बाई टू, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन AB। सो दीज आर द 3 फार्मूलेज ऑफ हाफ एंगल फॉर साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। अब फॉर्मूले आते हैं कॉस का और टैन का ग्रुप है।
So see the formulas for cos a by 2, cos b by 2 and cos c by 2. So cos a by 2 हर ग्रुप का एक एक फार्मूला याद रखिए. sin a by 2 और cos a by 2 अगर याद रखेंगे तो उसके आगे के फार्मूले आपको साइक्लिकली बना सकते हैं. सो cos a by 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. साइन a by 2 में भी नीचे बी सी था, cos a by 2 में भी नीचे बी सी है. साइन a by 2 का न्यूमरेटर है यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. कॉस a by 2 का न्यूमरेटर है यस इंटू एस माइनस ए. सो कॉस ऑफ a by 2 इज यस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. कॉस ऑफ b by 2 क्या होगा, रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी. और कॉस ऑफ c by 2 क्या होगा, रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी. So these are the three formulas of cos a by 2, cos b by 2 and cos c by 2. Now the number is tan a by 2, tan b by 2 and tan c by 2. So if we divide that is sin a by 2 upon cos a by 2 करेंगे तो हमें tan a by 2 मिलेगा. तो tan a by 2 का फॉर्मूला इस तरह से मिल जाता है. tan of a by 2 is equal to sin of a by 2 upon cos of a by 2. तो मेरा साइन a बाई 2 का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन बी सी. और कॉस ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए अपॉन बी सी. सो दिस बी सी विल गेट कैंसल. tan ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए. Similarly, you can keep in mind the formulas of tan b by 2 and tan c by 2. So these are the three groups of half angle formulae. Next students, हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के भी देखिए हमारे पास तीन फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. So first is area of triangle ABC. See on the board, area of triangle ABC. So if this is the triangle ABC, this is side A, this is side B and this is side C. So students, अगर if दो साइड है और उसका इंक्लूडेड एंगल वहाँ पे मैंने रेड करके रखा है बी सी और ए से मुझे फार्मूला चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज डेनोटेड बाय डेल्टा. डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो ये होता है हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ए. हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन. ओके, अब बी एंगल के लिए साइन बी चाहिए तो इस फार्मूला क्या होगा, साफ 1/2 ए सी इंटू साइन बी. और थर्ड फार्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी. तो इस तरह से तीन ग्रुप है, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ बी सी साइन ए और हाफ ऑफ ए सी साइन बी. नेक्स्ट इज हीरोज फार्मूला. सेकंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है. अर्लियर क्लासेस में 9th 10th में भी ये फार्मूला आपका रिवाइज हो चुका है. स्क्वायर रूट ऑफ हीरोज फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. वेरी वेरी फेमस फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, दैट इज द हीरोज फार्मूला. एंड द थर्ड इज गिवन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. थर्ड में मैंने दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डेल्टा इज गिवन बाय ए बी सी अपॉन 4r. ABC upon 4r. So this is also the formula to find the area of triangle ABC. ये फार्मूला कहाँ से तैयार होता है, यहीं से तैयार होता है. सो इट इज़ 1/2 BC एज इट इज़, 1/2 BC एज इट इज़. अब मेरा साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन साइन ए क्या होता है 2r. तो साइन ए अपॉन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन ए क्या होगा 1/2r. ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r. तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू 1/2r. तो इस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ a/2r. सो फार्मूला रेडी, a/2r. सो इट इज़ ABC/4r. और यहाँ से मैं सरकम रेडियस भी निकाल सकता हूँ. सरकम रेडियस क्या होगी, ABC/4 डेल्टा. This is the circumradius ABC/4 delta, where delta is the area of triangle ABC, and this is the delta, that is area of triangle ABC, ABC/4r, where r is the circumradius. Half of BC sin A is area of triangle, and the second I have already explained, that is the hero's formula, square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So these are the formulas of
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी उसे हम टेंजेंट रूल भी कहते हैं। दीज फार्मूलेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फार्मूले कब यूज करने होते हैं? when we have to use the tangent rule, that is the Napier's analogy, to solve the problems on the solution of triangle. So if the difference of the two angles is given, अगर किसी दो एंगल का डिफरेंस हमें प्रॉब्लम में दिखाई देता है तो हमें नेपियर एनालॉजी मदद कर सकती है। नेपियर एनालॉजी का फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल है। इसके भी 3 रिजल्ट हैं। तो उसका फर्स्ट रिजल्ट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिजल्ट? tan ऑफ, what is the first result? tan of b minus c by 2. tan of Napier's analogy, tan of b minus c by 2 is equal to, यहीं से मैं ध्यान में ऐसा रखता हूँ, एंगल b एंगल c b माइनस c by 2 है तो स्मॉल b और स्मॉल c लेके b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू कॉट, यहाँ से बचा हुआ एंगल b और c, रिमेनिंग एंगल क्या है? a, सो इट इज़ कॉट a by 2। तो इस तरह से नेपियर्स एनालॉजी के 3 फार्मूले हैं। सो tan ऑफ b माइनस c by 2 इज b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू कॉट a by 2। सिमिलरली व्हाट इज सेकंड फार्मूला? tan ऑफ c माइनस a by 2 इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट b by 2। और थर्ड फार्मूला क्या होगा? tan ऑफ a माइनस b by 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू कॉट c by 2। कैपिटल ABC आर द एंगल्स एंड स्मॉल ABC आर द sides of the triangle. So this is the Napier analogy, very very useful for solving the problems on the solution of triangle. So students, ये सारे फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूलेज का यूज़ करके आप सभी टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूँगा। इसका आप इसको प्रूफ कर सकते हैं या इनका प्रूफ हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एज अ प्रॉब्लम इनको सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई विल जस्ट रिवाइज दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स ही है, लेकिन इनको सॉल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी एज अ फार्मूला आपको सिर्फ इसको रिवाइज करने का है। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सो हियर इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज़ द ग्रेटेस्ट। अगर आपको ग्रेटेस्ट एंगल पूछते हैं सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड की अपोजिट एंगल इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। और स्मॉलेस्ट साइड, सेकंड पॉइंट देखिए, स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल होगा स्मॉलेस्ट एंगल। सो इन एनी ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज़ ग्रेटेस्ट एंड एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज़ स्मॉलेस्ट। वेरी यूजफुल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल कब कब होता है उसकी कंडीशन दिया है। सो फर्स्ट कंडीशन इज a बाय cos A इक्वल टू b बाय cos B इक्वल टू c बाय cos C. This is the condition, one of the condition that the triangle is equilateral. So that condition is triangle ABC is equilateral if a by cos A इक्वल टू b बाय cos B इक्वल टू c बाय cos C. तो यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा बनेगा? हाउ द ट्रायंगल फॉर्म विल बी इक्विलैटरल। अगर हम इसको साइन रूल यूज़ करते हैं तो a अपॉन साइन ए इक्वल टू के होता है, तो a इक्वल टू मैं के साइन ए लिख सकता हूँ। सो हियर a इक्वल टू के साइन ए अपॉन कॉस ए। सो सिमिलरली व्हाट इज़ b? b को क्या लिख सकता हूँ मैं? के साइन b अपॉन कॉस b। और c को क्या लिख सकता हूँ? के साइन c अपॉन कॉस c। ओके, so this k will be cancelled, so it is, this becomes tan A equal to tan B equal to tan C। अगर tan A tan B tan C सेम है तो A B और C सेम हो गए, तीनों एंगल सेम हो गए तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। इसका रेसिप्रोकल करके भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन बनेगी। इफ़ cos A by इक्वल टू cos B by B इक्वल टू cos C by C, देन ऑल्सो द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। नेक्स्ट कंडीशन cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 3/2, सी द सेकंड कंडीशन। सो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन जो दी है सेकंड वाली, cos A प्लस cos B प्लस cos C 3/2 क्यों होगा? अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ABC 60 हो गए। ईच cos विल बी इक्वल टू 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल इज sin A प्लस sin B प्लस sin C इज 3√3/2। तो ABC अगर 60 डिग्री होंगे, इक्विलैटरल होगा,
So sin 60 plus sin 60 plus sin 60, तो 3 times root 3 by 2, that is 3 root 3 by 2. नेक्स्ट कंडीशन इज tan a plus tan b plus tan c इक्वल टू 3 रूट 3. अगर ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है तो a प्लस बी ए बी सी 60 होगा. सो tan 60 plus tan 60 plus tan 60 रूट 3 plus रूट 3 plus रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 3. एंड फॉर cot 60 is 1 by root 3, so 1 by root 3 plus 1 by root 3 plus 1 by root 3, that is 3 by root 3, 3 by root 3 is root 3, so cot a plus cot b plus cot c equal to root 3 होगा. So here these are some conditions for the triangle to be equilateral. Now अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल कब होता है. सो राइट एंगल की यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन दिए हैं. सो फर्स्ट कंडीशन इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 होता है. कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 होता है. एंड द थर्ड कंडीशन गिवन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, वेर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल. इनको रिलेटेड यही प्रॉब्लम्स हम प्रॉब्लम्स के लेक्चर में, ये रिजल्ट्स को हम प्रॉब्लम्स के लेक्चर में प्रूफ करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे एज अ प्रॉब्लम. तो इस लेक्चर में इसको आप एज अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके ही नोट कर लेने का है. बाद में मैंने दिए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन. तो उसकी कंडीशन है a cos b इक्वल टू b cos a एंड सेकंड कंडीशन इज cos a इक्वल टू साइन b अपॉन 2 sin c. इसको भी हम प्रूफ करेंगे. आप प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर मेरा देखिए, उसमें आपको इन सभी का प्रूफ मिल जाएगा. और ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल और आइसोसेलेस इफ a cos a इक्वल टू b cos b. So these are the important results for the solution of triangle. So students, this was in this lecture we have discussed the total formulas of solution of triangle. इन सभी formulas को लेके आप CET के MST CET के solution of triangle के सभी problems को easily solve कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको practice भी करनी पड़ेगी. So in the next lecture I will be again with you with the important problems for MST CET on solution of triangle. Okay students, bye.